We were studying Peano's existence theorem. So what are the conditions on F? You have a continuous function and we are taking unbounded domain. So boundedness is required. If you take F on this domain, okay, so then boundedness will follow automatically. Continuity implies boundedness on this rectangle, but we are providing general proof, so y can take any value. So you are solving this IVP on on the region like this. Okay, so in y this is unbounded. So then IVP has at least one solution. So this is classical existence theorem. This does not provide uniqueness. And if you want to prove uniqueness, you have to add Lipstadt condition and then proof follows by Picard's approximations. So what we have IVP and F is continuous on region R. Then we are proving the existence on one part. Okay, so T naught is center, so you are proving on right hand side. And its extension to the left can be followed in the same manner. ठीक है, so region ये था ना T naught minus A to T naught plus A. So then we define a sequence of functions denoted by ym t. So write it t. So first one is constant. This is initial data y0, t naught to t naught plus a by m. And then another sequence are defined by this relation. So you are writing t naught to t minus a by m. Okay, so m goes to infinity. So this is just if m is large, so you are writing from t naught to t. So to just make a sequence, we have defined these yms. तो डिफाइन कैसे हैं टी नॉट प्लस के ए बाई एम से लेके के प्लस वन तक हो. ठीक है, तो पहला पहला हमने डिफाइन किया है कांस्टेंट दिस वन. then all others are defined by this formula. So first t naught to a plus a by m to t naught plus 2a by m. Then second one is t naught to 2a to 3 and so on. So now we proceed further. You have boundedness assumption in question. So what we have since fty is bounded in region R. Okay, so we assume जो बाउंड है उसको हम लिख लेते हैं. So let fty less than or equal to m. Okay, so now we prove to apply Argela-Ascoli, you need to show continuity and equicontinuity of this family. So these are family of functions. So they are bounded and equicontinuous. First one is constant, so this is automatically bounded, and you boundedness of f will give you boundedness of ym. So now we to apply continuity, so we take 2 points, take t1 t2,
in given region to right side of T naught, and we have, so I'm writing three possibility as I discussed yesterday. So this is my T naught, then T naught plus A by M. इसमें आगे फिर दूसरा है, इसमें तो फिक्स है y जीरो, और इसमें वाई एम डिफाइन है जो सेकंड फार्मूला. So there are three possibilities of T1 T2, so both can be here. Okay, one can be here and one can be here, or both can be here. So we are writing three possibility. So first one is ym T2 minus ym T1. This is 0. अब 0 तो सबसे छोटा है, इसको लिख सकते हो आप. ये कब होगा? If T1 T2 belongs T0 to T0 plus A by M. Okay, in this side. तो ये एक्चुअली 0 कैसे आया? y0 minus y0. ओके, दिखना देख लाइन ऊपर लिख दो. 0 के साइड में लेस देन इक्वल टू m क्यों लिखा है? ये हम सिमेट्री बनाएंगे आगे. अच्छा ठीक है, कंटिन्यूटी में आता है ना, लेस देन और इक्वल टू T2 minus T1 लिखना है ना. ठीक है सर. So this is valid for one. ठीक है, सेकंड के लिए इसी के आगे लिख रहा हूं. अब T1 की वैल्यू है, यहाँ अलग अलग लिख लेते हैं. अब ऐसा करो, उसको ऊपर ही लिख लो ना, फिर ऐसे पता नहीं लगेगा. ये तो लिख दिया, ठीक है. सो फॉर T1 belongs to T0 to T0 plus A by M, and T2 belongs to दूसरी साइड T0 plus K A by M, T0 plus K plus 1 A by M. Okay. So in that case you have, अब T1 T2 को चेंज कर सकते हो, जैसे नोटेशन है. यू कैन राइट ym T1, उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है. अब ये लिखोगे तो क्या होगा? ym T2 क्या होगा? Go to this relation. What will be ym T2? From T की जगह T2 कर दो ऊपर लिमिट में. So this is y0 plus T0 to T2, and same integrand ym T2 minus ym T1. This is y0. So y0 will cancel out. इसको मैक्सिमम बड़ा कर दो. f is bounded by m. Okay, so use bound, take m outside. इंटीग्रल किसका बचेगा? ds का. ds का इंटीग्रल s होगा. अपर लिमिट फिट करोगे माइनस लोअर लिमिट, ठीक है. अब इसको मैं लिख सकता हूं, ये तभी हमने यहाँ m लगाया था, ठीक है. तीनों में सिमेट्री बना देंगे, इसमें भी m आ रहा है. इसको इससे छोटा लिख सकते हैं. ये कम कर रहा है ना, है तो a पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है इसमें से. इस साइड को बड़ा करना है. So you can get rid from this number. एक्सक्यूज मी सर, ये एक बार फिर से बताना. माइनस वाई नॉट क्यों आया अकेला? टी नॉट टू T1. हाँ सर, वो इंटीग्रल वाला मिस हो गया ym T1 में. वो इंटीग्रल भी आना चाहिए. T0 to T1 माइनस A by M. कौन सा?
सर ये जहाँ पे आपने सब्ट्रैक्ट किया है ym t2 माइनस ym t1, ये T1 इस इंटरवल में है, इस वाली साइड में, यहाँ पे y0 है, दिस हियर। तो यहाँ पे t0 to t1 माइनस a/m वाली टर्म नहीं आएगी? जो T1 है, जो T1 है वो T0 से लेके T0 प्लस a/m तक है। तीन पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ ना, पहले तो दोनों पॉइंट इस साइड हैं, दोनों दोनों यहाँ पे हैं, फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या बना रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है ऊपर, दूसरा पॉइंट इनके बीच में है। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, तीन दोनों पॉइंट इस साइड हैं। तो इसमें तो कांस्टेंट है ना, T0 टू T0 प्लस a/m। सर 1 मिनट, अगला पेज करना। ये y0 लिखा है ना फिक्स। यस सर, इसके साथ बोल रहे कि प्लस t0 to t1 माइनस a/m वाली इंटेग्रल वाली टर्म क्यों नहीं आई? किसमें इंटीग्रल वाली टर्म नहीं आई, इसमें सेकंड में। हम्म। तो यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये y0 है ना इस इंटरवल में, तो इंटीग्रल कहाँ से आ जाएगा, फिक्स है y0 इसमें। अच्छा ठीक है सर। फर्स्ट देखो, दो चीजें हैं तो दो पॉइंट लेने हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, दो टाइप से डिफाइन है फंक्शन, तो दो पॉइंट लेने हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या बना सकते हो, दोनों इधर हो, दोनों इधर हो, ठीक है, एक इसमें हो एक इसमें हो, यही पॉसिबिलिटी बनेगी तीन। तो वो पॉसिबिलिटी बना रहा था, ठीक है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दोनों इसमें हैं, ऊपर लिख दिया मैंने फर्स्ट में, सी दिस वन, इफ T1 एंड T2 बोथ बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। दूसरी पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, T1 इधर है तो उसमें ये y0 है, ठीक है, और T2 जो है वो इधर है। अब इसमें वैसे, चलो उसको इकट्ठा कर देते हैं, ये बनेगा a/m, तो ये T1 मतलब इससे छोटा ही रहेगा, आप इनको अगर क्लब करोगे, सो दिस विल बी लेस देन T2 माइनस T1। थर्ड पॉसिबिलिटी, ये दोनों राइट में हो, T1 भी उधर है। अब आप जो कह रहे थे वो करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, T0, अब इकट्ठा लिख दो दोनों को, सो बोथ T1 T2 दे बिलोंग्स टू T0 प्लस k a/m, T0 प्लस k प्लस 1 a/m। ओके, सो वी हैव, अब जो आप पॉसिबिलिटी लिख रहे थे, अब y0 लिखोगे, ym t2 लिखोगे, वो तो सेम आएगा, T2 तक जाएगा, और ym t1 वो भी सेम मैनर में, y0 प्लस T0 टू T1 माइनस a/m। ठीक है, अब वो पॉसिबिलिटी लिखें जो आप कह रहे थे। सो राइट ym t2, बताओ मेरे को फाइनल आंसर। बोलो। इंटेग्रल ऑफ t0 to t2 माइनस a/m। हाँ, y0 f क्या, y0 प्लस fs काट दिया ना, fs ym's ts माइनस माइनस y0, ये ym y0 t1 हो गया, तो T0 से लेके t1 माइनस a/m हो जाएगा। y0 को कैंसिल कर दो, ठीक है, इस माइनस को ही प्लस बना सकते हो, लिमिट उल्टी कर दो, दोनों को क्लब कर सकते हो इंटीग्रल को। सो इंटीग्रल विल बी T1 माइनस a/m टू T2 माइनस a/m, club both integral, use bound of m, you can write m times T2 minus T1। So in all three cases, you can write this, okay। तो T1 T2 किस में बिलोंग करें,
और सर टू बी ऊपर m आएगा, वाई एम, जो इंटीग्रल आपने लिखा है ना फर्स्ट लाइन में, किसमें? जो फर्स्ट लाइन में इंटीग्रल लिखा है उसी पेज पर सर, उधर वाई एम आएगा, इसमें m लिख तो दिया, ये इसके ऊपर वाले में सर, m कहाँ से फर्स्ट आएगा? वाली लाइन, फर्स्ट वाली। तो ये जो इंटीग्रेशन लिखे है ना T0 to T1 minus a by m हाँ, f s y m s t s वाई एम अगला ही क्या? अगला, ठीक, वाई एम, थैंक यू। ठीक है, ध्यान रखते हो, अच्छी बात। ठीक है, so for every t1 t2 on left hand side you have this, तो डेल्टा क्या लिखोगे? सो हेंस आप करते थे उसमें वन डायमेंशन में एफ बी माइनस एफ ए, इफ यू थिंक ये इससे छोटा है, इफ यू टेक लेस देन एप्सिलॉन, तो T2 माइनस T1 क्या होगा? प्रोवाइडेड T2 माइनस T1 इज लेस देन लेस देन डेल्टा, एप्सिलॉन डेल्टा। by m, and you can write this delta. So the sequence YMT is equicontinuous, मतलब सारे मेंबर फैमिली के कंटिन्यूस हैं। ठीक है, बाउंडेड, अब बाउंडेड शो करना है, बाउंडेडनेस ट्रिवियल है, मैं कह रहा हूँ। बता सकते हो ट्रिवियल कैसे है? लुक एट द सर एक्सप्रेशन। कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज तो नहीं है, हमने तो बाउंडेड इंटरवल। एफ बाउंडेड है ना, हम्म, एफ का बाउंड यूज करोगे, मतलब पहला वाई एम तो फिक्स है, दिस इज बाउंडेड, नो प्रॉब्लम, इसमें ये बाउंडेड है। ठीक है, सो इंटेग्रल आएगा, इंटेग्रल में टी होगा, टी बाउंडेड है, यही रखा उसने। ठीक है, सो दीज वाई एम्स आर बाउंडेड। तो उसको फॉर्मली कैसे लिखेंगे? एक्सक्यूज मी सर। मोर ओवर, हाँ जी। सर जो आपने इससे पहले जहाँ इंटीग्रल की फर्स्ट लाइन लिखी है, एक मिनट वो वाला पेज करना, वहां पर जो वाई नॉट इससे पहले वाली, ये कल लिखा था ये। सर इससे नेक्स्ट। हाँ सर, इसमें जो ये एन है, एम कहाँ लाइक कर रहे हो? ठीक है सर। एम दो हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले एम नहीं है, ठीक है, एक ये एम है, एक ये है, ये सीक्वेंस के लिए है, ये बाउंड है उसका। ठीक है, केस सेंसिटिव है, ठीक है, so they have different meaning. So for every t belongs to t naught to t naught plus a, we are writing bound, so we have y of mt पहला, चलो उसको लिख लो। सो पहला क्या है, पहला तो फिक्स है, वाई एम टी इक्वल टू वाई जीरो। ठीक है, सो मॉड ऑफ वाई एम टी इक्वल टू वाई जीरो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, कब? फॉर टी बिलोंग्स टू टी नॉट टू टी नॉट प्लस ए बाई एम। अब सेकंड में, एंड जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसमें वाई एम टी का मॉड लिखोगे, वो क्या आ जाएगा, वाई जीरो प्लस इंटीग्रल का मॉड अप्लाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, यूज बाउंड ऑफ एम, तो इंटीग्रल बचेगा ds, सॉरी t माइनस ए बाई एम तक था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा t माइनस ए बाई एम माइनस टी नॉट, ds का इंटीग्रल करोगे ऐसा आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी,
अब पहली बात तो आप a/m को छोड़ सकते हो ना, नेगेटिव है, कम कर रहा है, तो चाहे आप एक बार ये लिख लो। हमारे पास क्या है, t माइनस टी नॉट लेस देन a दे रखा है, सो ये आप आ गया आपके पास। ये कब होगा, जब सेकंड वाला रिलेशन है, तो ये भी बाउंडेड है। सो द सीक्वेंस YMT is uniformly bounded in T0 to T0 plus A. So now apply Argela-Ascoli theorem. Now by Argela-Ascoli, वैसे इनके नाम पे ये भी लगता है, theorem, the sequence YMT contains a subsequence अब जिसको YM का सब सीक्वेंस क्या लिख रहा हूं मैं, YMK, ठीक है। सब सीक्वेंस भी सीक्वेंस होगा, सो यू रिटेन सम टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस और यू टेक ऑल टर्म्स, कुछ टर्म रख लो उसकी, उससे जो सीक्वेंस बनेगा सब सीक्वेंस, सो दैट सब सीक्वेंस which converges uniformly to a continuous function, अब कन्वर्ज करेगा तो उसका कोई ना कोई लिमिट होगा, से दैट लिमिट इज yt. So now we show that this yt is a solution. Now we show that the function yt is a solution of given IVP. For this, we take limit k goes to infinity in the अब मैं सब सीक्वेंस लिख रहा हूँ YMK का, उसका Y का मतलब जो YM लिखा है हमने उससे एक बनाना है आपने छोटा, तो YM क्या लिखे थे मैंने, जो पीछे हमने YM लिखे थे, Y0 प्लस T0 टू T माइनस A/M। सर इन दो के बाद आपका नेटवर्क इशू हो गया था तो कुछ आया नहीं है उधर, क्या जो आप k टेंड्स टू इंफिनिटी लिख रहे थे उसके बाद आपका आवाज चला गया था तो उधर कुछ लिखा नहीं है। अच्छा, आवाज कहाँ चला गया, देखते हैं, नेट का है इसमें, पता नहीं। अब मेरे कोई मैसेज अभी आ रहा है कि योर कनेक्शन इज अनस्टेबल। अब आ रही है आवाज, अब तो ठीक है, शायद आ रही है। बोलो भाई, आ रही कि नहीं आ रही? म्यूट हो गया क्या? अच्छा, आ रही है। आ रही है, अच्छा चलो। तो इसका सब सीक्वेंस बनाना है, तो m की जगह हम mk तक लिख देंगे इसको, इंटीग्रल को, ठीक है। सो आई एम राइटिंग, सो वी शो दैट द लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस इज ए सोल्यूशन, जो हमने सब सीक्वेंस लिखा है उसका लिमिट दैट इज ए सोल्यूशन।
हमने ये फिनिश करना, लेट मी फिनिश, बाद में पूछ लेना आप एंड पे, ठीक है। सो आई एम राइटिंग वाई एम के, सब सीक्वेंस लिख रहा हूं, टी नॉट टू टी माइनस ए बाई एम के एफ एस वाई एम के, ठीक है। देन आई राइट, इसको मैं लिख रहा हूँ टी नॉट टू टी, क्योंकि इंटीग्रल फॉर्म बनानी है ना हमने, तो वो टी नॉट टू टी तक है ना, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, और माइनस टी बाई ए एम के टू टी, मतलब मैंने क्या लिखा पहले, टी नॉट टू टी तक गया, ठीक है। अब ये टी से पहले या तो ये उससे कम कर दिया हमने उसमें से, क्योंकि आपने कहां तक जाना था, टी माइनस ए बाई एम के तक जाना था, बट मैं कहां तक चला गया, टी तक, ठीक है। तो जो टी माइनस ए बाई एम के की, मान लो ये टी माइनस ए बाई एम के है, ठीक है, ये आपका टी है, तो जाना तो मैंने यहां तक था, बट मैं यहां तक चला गया, तो ये वाला जो पोर्शन होगा दैट आई सब्सट्रैक्ट, ओके। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, हम कर सकते हैं। सो सब्सट्रैक्टिंग दैट पोर्शन, सो टी माइनस ए बाई एम के एफ वाई एम के एस, मतलब ये फर्स्ट वाला इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा, और सेकंड वाला अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो, ठीक है, अगर सेकंड जीरो को जाएगा तो ठीक है, हमारा सोल्यूशन मिल गया हमारे को। अब हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, सिंस, लिमिट लगाना है बस, फाइनल हो गया ये प्रूफ। सिंस एफ टी वाई इज कंटिन्यूअस एंड कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, पॉइंट वाइज नहीं है, convergence is uniform, so in the first integral we can push, we can take the limit inside the integral sign, मतलब आप लिमिट लगाते हो, जैसे मैंने ये लेना है लिमिट साइन 1/n लेना है, n गोज टू इन्फिनिटी, तो अगर कंटिन्यूटी है यू कैन पुश लिमिट इनसाइड, तो 1/n n गोज टू इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो ये लिमिट आपका 0 आएगा। ये तो सिंपल फंक्शन हो गया। अगर इंटीग्रल है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, देन यू कैन आल्सो पुश लिमिट इनसाइड। अब लिमिट लगाओगे दोनों साइड में, लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी, तो ये तो कांस्टेंट है, अब इनके अंदर लिमिट में तो k है नहीं, ठीक है, तो k किसके अंदर है, इसके अंदर, तो लिमिट आप अंदर भेज सकते हो, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अब इसका लिमिट क्या बनेगा, वाई एम के का y, ठीक है, और ये y बन जाएगा, और जो सेकंड वाला है क्लेम क्या कर रहा हूं, ये 0 बनना चाहिए, तो रफली आप कह ही सकते हो 0 बनेगा ही। अब देखो इंटीग्रल, मतलब अगर फाइनाइट फंक्शन है आपके पास है, फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है, कंटिन्यूस है, तो आपको इंटीग्रल की लिमिट भी फाइनाइट मिलेगी, प्रोवाइडेड आपका लिमिट फाइनाइट हो, ठीक है। अगर लिमिट इनफाइनाइट हो तो आपको इंटीग्रल का वैल्यू इनफाइनाइट भी मिल सकता है, बट अब आपका f है वो बाउंडेड है, इसका मैक्सिमा क्या हो सकता है, m, ठीक है, ये बाउंडेड है। अब लिमिट में क्या होगा, t माइनस a बाई एम के, when you take this integer large, so a by mk will goes to 0, so this integral will be from t to t, same limits, so this will vanish, तो लिमिटिंग केस में ये 0 बन जाएगा, और ये आपका इंटीग्रल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो क्लेम मैंने क्या किया है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, देन यू कैन पुश लिमिट इनसाइड द इंटीग्रल, तो अंदर फिट कर दो, इधर लगा दो लिमिट दोनों साइड में, k गोज टू इन्फिनिटी वाई एम के इक्वल टू y0, ये तो कांस्टेंट है, t नॉट टू t f s लिमिट k गोज टू इन्फिनिटी
वाई एम के एस डी एस माइनस लिमिट k goes to infinity, second integral t minus a by mk t fs y mks ds। ठीक है, अब इसमें मैंने लिमिट को बाहर लिखा है, इसमें मैं अंदर ले गया क्योंकि लिमिट के अंदर k नहीं है ना। फर्स्ट में देयर इज नो k इन लिमिट, बट इन सेकंड लिमिट यू हैव k। पहले k को सॉर्ट आउट करना है आपने। सो इन लिमिटिंग केस लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि वो कहता कि सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा तो कोई ना कोई लिमिट होगा, दैट लिमिट इज y। सेकंड ये बन गया t नॉट टू t, दिस इज fs, ये y बन जाएगा, और इसको मैं कह रहा हूं दिस विल बी 0, दैट इज t नॉट टू t fs ys ds। तो उसका रीजन 0 वाले का रीजन मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे। द second integral does not exceed, चाहे ऊपर भी लिख सकते थे आप, बट फिर वो ग्रेटर देन आई, डज नॉट एक्सीड्स वैल्यू किस, अगर इसको आप f लिखते हो m, ठीक है, इंटीग्रल करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो a बाई m के आ जाएगा ना, डज नॉट एक्सीड दिस नंबर a बाई, सॉरी दिस इज स्मॉल, वो गलती मैंने, स्मॉल m के, एंड हेंस टेंड्स टू 0 एंड टेंड्स टू 0। मतलब आप m को जब लार्ज लोगे ना, सीक्वेंस में हम लेते हैं, जब लिमिट निकालते हैं देन यू टेक दैट इंटीजर गोज टू infinity, so 1 by infinity will be 0, so second integral tends to 0 as k goes to infinity and first one becomes integral form। so therefore yt which satisfies the integral form of IVP, yt is a solution of given IVP। so this completes the proof। ओके, सो एक सब सीक्वेंस बनाया, ठीक है, सॉरी एक सीक्वेंस बनाया, उस सीक्वेंस को हमने बाउंडेड और इक्वी कंटिन्यूस उस फैमिली को शो किया, तो एक सब सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा। तो जो सब सीक्वेंस है, जो उसका लिमिट है, दैट सेटिस्फाई द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और जो सीक्वेंस बनाए थे वो भी इंटीग्रल फॉर्म से मोटिवेटेड हैं। सो बाय looking at integral form you make subsequence, and there are various proof of this theorem, even that was very active research topic, so you will find many proofs of these theorems। जैसे पिकार्ड लिंडलॉफ है पहले वाला, उसका भी इनके कई सारे प्रूफ हैं, even you find on internet। so some proof uses function analysis, some uses एलिमेंट्री कैलकुलस। तो हमने जो प्रूफ करवाया है, although they are lengthy but they use elementary calculus or analysis, so they are not using advanced stuff। so ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में ये पूछे हम कि f इज कंटिन्यूअस, बाउंडेड मैंने हटा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया y माइनस वाई नॉट लेस देन b, ठीक है। सो देन प्रूव द पियानो एडजेसेंस थ्योरम। तो सेम करना है आपने, सेम ही आएगा सर, बिकॉज बाउंडेड तो इंटरवल चेंज करके हो गया। एक लाइन लिख देना है आपने। सो बाउंडेडनेस, सो कंटिन्यूटी इंप्लाइज बाउंडेडनेस ऑन क्लोज्ड रीजन, ओके। सो एवरीथिंग रिमेन सेम, इवन बुक्स में प्रूफ जनरली वही होता है,
तो इसको बाद में एक्सटेंड करते हैं, बट हमने जनरल लिख दिया, सो यू कैन टेक दैट एज ए स्पेशल केस. So now you have two existence theorem. Okay, one is Picard existence theorem. Existence की बात कर रहा हूँ, uniqueness की बात नहीं कर रहा. And second one is Peano existence theorem. So both says that there exists a solution. तो क्या चाहिए हमें? अगर आपका डोमेन बाउंडेड है, so only continuity is required to check existence. But if you want to prove uniqueness, then Lipstadt condition is mandatory. So then you have to recall, you have to apply that condition as well. So let us take one quick example, and then this topic is finished. Tomorrow we will start second order equations. So let us take this example. Question है discuss existence. आप दोनों लगा सकते हो, अनलेस थ्योरम का नाम वो कहे कि या तो कहेगा डिस्कस एग्जिस्टेंस यूजिंग पियानो थ्योरम, या सीधा डिस्कस एग्जिस्टेंस ऑफ आईवीपी ओके. एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस आईवीपी. तो कैसा डिस्कस करोगे? अब डिस्कस का मीनिंग है ओपन एंडेड है क्वेश्चन आपका, हमने डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया, बट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका? y equal to 2, हाँ, t so t this is equal my to 2. ty plane, so t is 2, okay, so let us say this is 2 और 2 0 है, तो यहाँ से शुरू कर रहे हो, तो क्या आप इसके अराउंड लोकली कह सकते हो कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या कोई ये प्रॉब्लम करेगा? ये डिस्कस करना है. Okay, so in your notation you have t naught equal to 2, y naught equal to 0, and what is f? 3y 2/3. 3 2/3. लगाओ पियानो. पियानो में t पे कंडीशन है ना? t तो कहता है ना t minus t naught less than a mod of t. तो क्या क्या चेक करना पियानो के assumption क्या थे? Continuous bounded. कंटिन्यूटी चेक करनी है, और अगर आप रीजन फाइनाइट लोगे तो ये बाउंडेड भी हो जाएगा ना. Yes sir. तो क्या लिखोगे फिर, डिस्कस क्या करोगे? दोनों केस डिस्कस कर दो, अगर बाउंडेड है नहीं है फिर क्या होगा, मतलब डिस्कस कैसे करना है, बाउंडेड रीजन में क्या होगा, अगर बाउंडेड नहीं है तो फिर क्या होगा, है क्लियरली. f इज कंटिन्यूस फंक्शन है ना, 3 2y/3 है. बाय पियानो थ्योरम, Peano's existence theorem, this IVP has a solution for t minus t naught less than a. ये कोई नंबर है, और क्या लगानी पड़ेगी कंडीशन? y भी होना चाहिए ना, अगर सिर्फ कंटिन्यूटी है तो y माइनस 0 ही आएगा, सो y minus 0 is less than b. b अगर हो, ठीक है. तो अगर आपका बाउंडेड रीजन है तो आप ये लिख सकते हो ना, where a and b both are positive. ठीक है, या आप ये कह दो कि, और यू कैन से कि by Peano theorem there exists a solution in t minus t naught less than a if f is bounded in that region.
ये भी कह सकते हैं ना भी, या तो आपका डोमेन बाउंडेड हुआ, जहां तो आप रेक्टेंगल लो यहाँ पे, फिर बाउंडेड ऑटोमेटिकली होगा ही होगा वो, ठीक है। क्लोज रेक्टेंगल ले लिया ना मैंने ऊपर वाला। यस सर। अगर आप क्लोज रेक्टेंगल नहीं लेते, स्ट्रिप लेते हो, ये इस टाइप से लेते हो, तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि एफ बाउंडेड हो। अगर एफ बाउंडेड बाउंडेड है तो उस रीजन में, in that region there exists a solution. Okay, so this completes this